तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके पास ये है। इसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपके पास है 2x प्लस 3y plus 7 is equal to 0. This is a particular example of a linear equation in two variables. Okay, and we have to draw these questions. Okay, this is not a difficult task. This is really an easy one. I would say this linear equation in two variable will always make a straight line. Always make a straight line. So these linear equation in two variable, for example, it may have a form like this: 3y is equal to minus 2x minus 7, and y is equal to minus 2 upon 3x minus 7 upon 3. They may have a form like this. This is also a linear equation in two variable, which is a different one. I will tell you what kind of form is this, because I am interested to solve these kind of equation in future. So first of all, I have to draw a simple graph like this. Y 2x minus y is equal to 7, or I may say that I will shift y there. 2x minus 7 is equal to y. Now, how to draw these kind of straight lines? We need a order pair, and from where and and how to draw these, how to make a table of this? This is really simple. First of all, you need a table like this. I already told you about in my previous lecture. This is the linear equation. This is a linear equation two variable, actually a function. Y, I can say y as f of x. And this is a function which has domain set of real number and range also set of real number. If I am talking about set of real number, I am talking about each and every single number which is present in the world. Set of real number. Okay, now from how I take a values from these. This is really simple. X, Y. You may take any value of x. You may take any value of x. You may put any value of x. For example, I am putting 0. If I put 0 here, this would be 0. The answer is minus 7. Okay. Now if I put x is minus 1, okay, 2. If I put value of x is 2, it's really up to me. Whatever I want, whatever I value I want, because in domain, this is a real number. You may take any number from real number. So if I am taking 2, and the answer is 4 minus 7, which is minus 3. Okay, students, यहाँ तक बात समझ आ रही है? Hello, बेटा यहाँ तक बात समझ आ रही है? Yes, sir. And Sarmat, Aga, Yes, sir. that's really good. Yes, Okay, sir. let me take any value. For example, I will take 4. And if I take 4, it would be 8 minus 7, it would 1. And a really special thing I am telling you about linear equations in two variable. If you want to draw a graph, you just need 2 points. Now, this is the point. Your first point is 0, comma minus 7. Your second point is 2, comma minus 3. Your third point is 4, comma 1. You just need 2 points. Why you need 2 points? This why, that why, that's why you need 2 points. For example, 0, comma minus 7. Let me have my 0, comma minus 7. I am plotting here. Okay, this is 0, comma minus 7. Second is 2, comma minus 3. 2, comma minus 3. Okay, this one. And third is 4, comma 1. Okay, this one. Look, you may see, if I want to combine this line, I just need 2 points. Look, I need just 2 points, because I already found the direction of this line. Look, if I have 2 points, I can combine this line and extend till what I want. So simply,
आई नीड जस्ट 2 पॉइंट, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होंगे इसके लिए। तीसरा, चौथा, पांचवा, फॉर एग्जाम्पल लुक, इफ आई से दैट, अब मैं पुट कर लेता हूँ 5, अगर मैं 5 पुट कर लेता हूँ यहाँ पर, ओके 5, 5 2 10, 10 minus 7 3, look 5, 3 is already here। तो स्टूडेंट मेरी बात समझ आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो दोस्तों, यस मेरी सर। यस कितने सर। कितने दोस्तों को प्लॉट करना आ गया स्ट्रेट लाइन ये? जल्दी जल्दी। यस सर। सर आ गया। यस सर। इसका मतलब सिर्फ 2 पॉइंट से मैं इजीली इस लाइन को फाइंड कर सकता हूं। बाकी क्योंकि लाइन के पास इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होते हैं, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मेरे पास आ जाएंगे। तो this is the form of a linear equation in two variable and we always have a graph of a straight line। तो अगर तुम 2 पॉइंट्स भी फाइंड कर लो, लाइन को एक्सटेंड कर दो, देखो जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ -1 और -1 पे आंसर क्या आएगा, -2 -7, इट वुड बी -9। तो लुक, -1 पे आंसर क्या आ रहा है, -9। बेटा देख सकते हो ये आंसर ऑलरेडी यहाँ पर है। हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। तो यू कैन सी इजिली कि यार 2 पॉइंट्स में पूरी लाइन आइडेंटिफाई कर सकता हूँ और इसका हर पॉइंट ऑलरेडी होगा। तो ऑब्वियसली ये टेबल आप जितना चाहो उतना बना सकते हो, ऐसे कि नहीं बना सकते हो, पर आपका फायदा नहीं, आप ऑलरेडी 2 पॉइंट से सारे पॉइंट फाइंड कर सकते हो। यहां तक दोस्तों मेरे साथ हो? हेलो, हेलो दोस्तों मेरे साथ यस हो? सर। यस सर। Now let me give you a very interesting facts about these lines. Very interesting fact about. Now the equation of this line is y is equal to 2x minus 7, and look people, -7, you may see this y is equal to mx plus c. I want to compare these numbers, like here I take y is equal to mx plus c, so c here is -7, look, -7 and -7, this is actually a y-intercept. And what is y-intercept? When a line intersect with y-axis, it's known as y-intercept। बच्चों ये वाली बात समझ आ गई? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। यस ठीक है सर। दोस्त, यानी जल्दी से मुझे बताना, अगर y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 होगी तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, कहां से टकराएगी y एक्सिस पे? जल्दी बताओ, y एक्सिस पे सर कहां से? +5 से सर। बिल्कुल +5 से टकराएगी। यानी ये लाइन कहां से टकराएगी, यहाँ से टकराएगी, यहाँ से गुजरते हुए जाएगी। अच्छा, और मैं तुम्हें अगर जल्दी जल्दी इस लाइन को भी प्लॉट कर दूं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी, मैंने कहा 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो मैं एक जरा कंपैरिजन भी बताना चाहता हूँ आपको, एक मजेदार किस्म का कंपैरिजन। ओके, दिस इज x एंड दिस इज y, लेट मी टेक, ओके -1, इफ आई टेक -1 आंसर शुड बी 2, इफ आई टेक ओके -2 answer should be -1, let me take 0, answer should be 5, and let me plot these points as quickly as possible. Okay, -1 2, this is okay, -2 -1, -2 -1, this one, and second is 0 and 5, this one. You may see easily this is also a straight line. Let me draw a straight line here. Okay, and you can see this line actually passing through 0,5, which is known as y-intercept। दोस्तों मेरे साथ हो? हेलो दोस्तों मेरे साथ हो यस यहाँ सर। तक? यस सर। हर पॉइंट समझ आ गया, हर पॉइंट, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आपको समझ नहीं आई यस अभी तक? सर। क्योंकि ये नो सर। ये दुनिया तुम्हें आगे लेके जाएगी, ये सारी चीजें चाहिए होंगी। ओके दोस्तों, लेट मी कम टू दिस पॉइंट m, which is here is 2 and here is 3। This point is known as slope of a line, and I already told you about slope of a line. Slope of a line is nothing, this is the stiffness. Stiffness means how vertically line move upward or downward. It may use as downward as well. Now let me give you how to find this number, this m, from a given line. When you have a given line, you can find this number and this number easily. For example, I would say that, okay, I don't know about the equation of this line. It may be y is equal to mx plus c. And if I want to find m and c, let me have c here. First of all, I would say that, okay,
I would say that for C, for this line, C is -7. So y is equal to mx minus c. So I found c from a line. Now, if you want to find a slope m, which is simply rise per unit run, that means you have to make a right angle triangle. And this is really, really interesting. Look, you may form this right angle triangle anywhere from this line. You may find, and I will definitely form this right angle in other point as well. Look, this is run, and you run once, and you rise 2. The slope is 2/1. So the answer is 2. दोस्तों ये बात समझ आ गई? Hello. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Okay, this is not the way कि खाली यही ले सकते हो. देखो, मैं एक्चुअल पॉइंट क्यों ले रहा हूं ताकि आसानी हो. ये मैंने अब ये राइट एंगल ट्राइंगल ली, मैं कोई भी ले सकता हूं, और ये वाली ली. अब यहां पर रन कितना हुआ है? 1 2 3. राइज कितना हुआ है? 1 2 3 4 5 6. दैट मीन्स 6/3. स्टिल आंसर इज 2. दोस्तों मेरे साथ हो? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. आई होप. अब चलें जी, इसको फाइंड करते हैं. y is equal to which is mx plus c. Sarmat, can you help me to find y-intercept for this line? A value of a c, or a simply, can you tell me the value of a c for this line? Sarmat, quickly. Sarmat, can you hear me, Sarmat? Okay, Aga, can you tell me? Aga, Yes, sir. what would Sir, be the value of C. yes? Tell me, Sarmat. Aga, tell me. Aga, can you hear me? Sir, C. Yes, sir. C plus 5 होगा. Okay. Or can you find the slope from this line? You may. Okay, this is really simple. So the run is 1 and the rise is actually 3. So 3/1, that means the slope is actually 3x plus 5. Aga, Sarmat, Wajid, Dua, Ismail, जिसको ये बात समझ आ गई है, thumbs up कर दें. Sarmat, can you hear me? I don't know. Sarmat can hear me or not. Yes, sir. सरमद, ये बात समझ आ गई. सरमद, आपने मुझे आंसर नहीं दिया यार उसका. आपको नहीं पता था वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलो सरमद. सरमद बोलो. Question. क्वेश्चन मैंने किया था सरमद. चलो ठीक. ओके, नाउ let me make another question for you people. Okay. Draw a line and let me take a 2 point like this one and this one. Okay, people, I want to know the equation of this line. Y is equal to mx plus c. So anyone who can tell me the slope of this line? First of all, c, y-intercept. Let me share you where this line intersect. Okay, cool. Let me reduce this graph. Okay, now you can see now. Okay, Sir, sir. 16. Okay, no. Okay, Sarmat, tell me the value of C. Sarmat, tell me the value of C quickly. So 16, sir. 16. Why? Reason? Tell me why. Y intersect, sir. That's really good. Okay, this is really interesting. 16. Okay, Aga, can you tell me the value of a slope? Sir, 3. Are you sure?
Yes, sir. You people find it very fascinated this. So now this is 2 actually. This is 2 and this is 2, 4, 6 because the gap is now 2. This is 6. So 6 divided by 2, answer is 3. Fine, absolutely fine, Aga. But remember, people, all of you, this is actually -3. Why? If a line start from upward and go downside, then the slope is negative. You may find slope similar way, but you have to put a sign negative. दोस्तों ये ध्यान में रहेगा. हेलो 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 दोस्तों, ये ध्यान में रहेगा. सर फिर से बताएं. Yes, sir. बेटा Yes, जब sir. जब आप ये लाइन नीचे की साइड बनेगी ना, तो तुम स्लॉप तो बिल्कुल वैसे ही निकालोगे जैसे निकालते हो, मगर स्लॉप का साइन चेंज कर दोगे, यानी माइनस साइन दोगे. वो बात समझ आ गई? यस Yes, सर. sir. सरमत सही आपने आप स्लोप इसका कैसे निकाला? इसमें 3 बॉक्सेस वेरी है ना इसमें तो. 3 बॉक्सेस है, पर एक बॉक्स अब 2 का है. मैंने स्केल कम किया ना. देखो 4 से 6, तो एक 2 का है, दूसरा 2 का है और तीसरा भी 2 का है और ये भी 2 का है. याद देखो गेप 2 का है, तो 2 और ये 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो टोटल 6 हो Yes, जाएगा. sir. ठीक है बेटा. Yes, sir. ओके ओके पीपल, गिव मी द आंसर्स नाउ. लेट मी शेयर यू few questions and let me move to my PDF which I want to solve from you. And yes, definitely I want this, that you people will solve that. मैंने ये सारा डिस्प्ले किया ही क्यों? सिर्फ इस वजह से. ओके नाउ आई थिंक इसका काम कंप्लीट हुआ. लेट मी कम टू माय PDF. ओके, होपफुली तो अब मैंने जो समझाना था वो समझा दिया. बेटा ये इतनी जगह यूज होने वाली चीजें, इतनी जगह यूज होने वाली चीजें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं. तो अगर आपने इसमें से कुछ भी भूला, मैं अपलोड करूंगा वीडियो, आप जरूर देख लीजिएगा वहां पर. बार बार जब भी भूले बार बार देख लीजिएगा दोस्त. सो दिस इज ओके. ये क्वेश्चन है, जल्दी बताओ दोनों का इक्वेशन कंप्लीट करो. दोस्तों सबके सब अपने पास दोनों क्वेश्चन की इक्वेशन कंप्लीट करो जल्दी से. मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा आपको, सिर्फ 1 मिनट. इतनी देर भाई, कर लिया? जल्दी बताओ, कर लिया? Yes, sir. 5 इक्वल एम एक्स प्लस. अच्छा जल्दी बताओ भाई, कौन बताएगा एम की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए? एम की वैल्यू क्या है? Sir, टाइम 3. हरीशोर 3. ओके 3x. और सी की वैल्यू दोस्तों? Sir, 1. ओके वाजिद. वाजिद है नहीं. आगा ने बताया है मुझे. और सरमत और दुआ, इस्माइल. हाँ भाई, आपका भी यही आया है? सर हम सम कर Sir, रहे थे यहाँ अभी, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है, आ गई थी. यार इतनी देर. अच्छा सरमत आपने किया? sir. सर कर रहा हूँ सर. जल्दी करो. सरबत मैं आपको ट्रैक करता रहूंगा, मैं आपको तंग करता रहूंगा. देखो अब मैंने अगर जिम्मेदारी ली है ना, तो मुझे कंप्लीट करनी होती है. तो आई विल नॉट लेट यू. सर ये नेगेटिव में नहीं आएगी वैल्यू? नेगेटिव सिर्फ तब आएगी जब नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा हो. ये तो नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी अगर इस शक्ल में होगी तो नेगेटिव आएगा स्लॉप का. ठीक है. ओके सर.
सर रन अपॉन राइज होता है ना? राइज अपॉन रन। आगा सबसे फास्ट चल रहा है, शर्मा जल्दी करो बेटा। सर हो गया। ओके सरमत, इसके लिए जरा कंप्लीट करना है ये, इस लाइन के लिए कंप्लीट करो सरमत, जल्दी यार। सर सी इज इक्वल टू 6 सर। इज इक्वल टू 6, शाबाश। प्लस एम की वैल्यू बताओ। वेरी गुड, तो सही होता है। 4 सर। 4, सर let me see, it would be -4, it may be -4, but I don't know. Interesting. This is 2, and if I make a right angle triangle like this is 1, 6. So 6 divided by 2, no, it would be 3 and -2. आपने कैसे किया था? सर ये इसमें सच में मिस्टेक हो गई थी। सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो बाबा बोलो। सर अगर ये सर ग्रेडियंट जो है स्लोप है, अगर वो सर हर एक में डिफरेंट आ रहा हो, अगर सेम ना आ रहा हो तो डिफरेंट इन सेंस मतलब डिवाइड द और नंबर, तो अपॉन में आ जाएगा। अगर सर मतलब एक पॉइंट पे सर सेम हो तो दूसरे पॉइंट पे अगर उससे डिफर कर रहा हो। कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, कहीं से भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ हमेशा सेम आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट हमेशा सेम होता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ओके पीपल, अब ये चलो इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। ये मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करो, पहले पहले को कंप्लीट करो। चलो पहला कंप्लीट करो, सरमत आगा वाजिद, जल्दी जल्दी। सर हो गया सर पहले का। आगा से तो हो गया, व्हाट अबाउट सरमत और स्माइल? टाइम लगा रहे हो, बताओ। सर सरमत नेगेटिव 2x प्लस नेगेटिव नीचे से ऊपर तो आ रहा है, देखूं ये कितना है, 8 है ये, और ये कितना है, 4। इंटरेस्टिंग चीज, -2 तो नहीं है, 4/8 होगा, -1/2 है, क्योंकि राइस पर यूनिट रन। खैर कोई बात नहीं, आइडिया तो आपका सही था। -2 आप सोच सर रहे ये थे वो, कैसे हुआ? बेटा राइस पर यूनिट रन है ना, माइनस कैसे आया? माइनस क्योंकि डाउन साइड पे आ रहा है। सर ये कैसे पता चल रहा है डाउन जा रहा है कि अप जा रहा है? दुआ ये बताओ, ये लाइन नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है? मतलब सादा अल्फाज में, अगर दुआ लेफ्ट टू राइट ऊपर जाए, लेफ्ट, ये देखो ये लेफ्ट है, टू राइट ऊपर जाए तो ये पॉजिटिव स्लोप स्लोप, और अगर आपके पास लेफ्ट टू राइट डाउन जाए, देखो
लेफ्ट टू राइट डाउन जा रहा है, नेगेटिव स्लोप। दुआ बात समझ आ रही है? हेलो, यस सर। थोड़ा शुरू में डिफिकल्टी होगी, उसके बाद सेट होगी। तो दिस इज रियली सिंपल वन, इतना मुश्किल भी नहीं है। सरमत 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 सरमत, पता नहीं मौजूद है या नहीं है। चलो ये 2 करके दिखाओ, शाबाश, जल्दी से। इससे तो मैं पर्सनल पूछता हूँ। कोई बात सर हो गया। आगा हुआ। यस सर। अब दिख गया है। यार ये वाजिद ने छुट्टी क्यों की यार, इनको समझ क्यों नहीं आता। सर ये दूसरा तो कहीं इंटरसेप्ट ही नहीं हो रहा। यस सर। अब ये थोड़ा इन्होंने ना तंग करने की कोशिश की, और कुछ इस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो बढ़ेगा। खैर फिलहाल फिलहाल तो ये एक करो बस, ये मैं बात बताऊंगा। ये कोई इतना भी जरूरी नहीं। अभी जो मेरा टास्क है ना, स्लॉप फाइंड करना, तुम्हें इस इक्वेशन के बारे में क्लियरली आइडिया दे देना। तो तुम्हें ये पता चल गया, अगर तुम्हें गिविंग लाइन हो तो तुम एम कैसे निकाल सकते हो और सी कैसे निकाल सकते हो। जैसे इसका क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू सी की वैल्यू है -3, और m की वैल्यू अगर मैं देख सकता हूँ, आपके पास कितना होगा, ये 3 है। ऐसे बना लूं, 1 2 3 और 2, तो 3/2 होगा ना। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। चलो ठीक है भाई, अब यहीं तक रख लेते हैं। इंशाल्लाह कल हम इसकी बाकायदा और आगे मूव करेंगे। पहला पहला हमने जो मुश्किल थोड़ी सी चीज थी वो हमने कवर कर ली है। अब हम जरा आसान चीजों पे कल जाएंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। आगा ये वाजिद से बोल दीजिएगा, छुट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए, छुट्टी गुंजाइश नहीं। ओके जी, अल्लाह ओके सर। हाफिज।